Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss fundamental of agricultural economics. Under agricultural economics, today I will discuss topic elasticity of demand, meaning and definition of elastic and inelastic demand and difference between elastic and inelastic demand and kind of elasticity of demand. Now, elasticity of demand. Elasticity of demand means the percentage change in demand due to the percentage change in price. So, a change in the price of commodity affects the demand. We can find the elasticity of demand or the degree of responsiveness of the demand by the comparing the percentage price change with the quantities demand. So, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अपन प्राइस और जो डिमांड है इनके रिलेशनशिप को ये शो करती है कि डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर चेंज होने पर डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा और डिमांड के ऊपर चेंज होने पर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा। डिमांड के अंदर जो परसेंटेज चेंज होता है उनका प्राइस के ऊपर कितना परसेंटेज चेंज होगा, प्राइस कितने परसेंट चेंज होगी जिसका डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, वो शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Now, type of elasticity of demand. The elasticity of demand are the three types. First, price elasticity of demand. Second, income elasticity of demand. Third, cross elasticity of demand. So, first, price elasticity of demand. Price elasticity of demand means the percentage change in the quantity demanded due to the percentage change in the price. So, price elasticity of demand. Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of the quantity demand or a good to change its price. It is defined as the ratio of proportionate changes in the quantity demanded of a good caused by a given proportionate change in a price. So the formula of measuring the price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded is the ratio of percentage change in the price. प्राइस इलास्टिसिटी होती है कि प्राइस के अंदर तो कितना चेंज हुआ और डिमांड के अंदर कितना चेंज हुआ, उसको शो करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डिग्री ऑफ चेंज और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वालिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स टू द चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो द income elasticity show the income show in the EY elasticity E means so elasticity, Y means income. So elasticity of income is the ratio of percentage change in the demand quantity demand to the percentage change in the income. Percentage change in income. Income elasticity of demand can be defined as the ratio of percentage changes in the quantity of goods purchased per unit of time to the percentage. Now, cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand means the percentage change in the quantity demanded of good X and percentage change in the price of good Y. So, जो क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ये रिलेशनशिप को शो करता है दो गुड के रिलेशनशिप को। दो गुड के जो अपने पास दो गुड है, एक तो एक्स गुड है और एक वाई गुड है। तो एक्स गुड जो है वो तो शो करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड गुड को और जो वाई गुड है वो शो कर रहा है चेंज इन प्राइस गुड ऑफ वाई को। सो इन दोनों के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसको शो करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द डिमांडेड ऑफ वन गुड एज द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। नाउ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फर्स्ट perfectly inelastic demand, second perfectly inelastic demand, perfectly elastic demand, third unitary elastic demand, fourth relatively elastic demand, last relatively inelastic demand. So perfectly inelastic demand का अर्थ होता है कि इलास्टिसिटी के अंदर अपन रिलेशनशिप शो करता है ये प्राइस और डिमांड की। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड उसे कहते हैं कि अगर प्राइस के अंदर तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर अपन चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होती है कि डिमांड के अंदर तो चेंज हो रहा है लेकिन जो प्राइस चेंज हो रही है उसके अंदर बहुत ही कम या माइनर चेंज हो रहा है, वो होती है अपनी प्राइस या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर अपन चल रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्राइस
1% बढ़ रही है तो डिमांड भी 1% ही बढ़ेगी, तो उसे कहते हैं अपन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मीन्स द स्मॉलर चेंज इन डिमांड एंड लार्जर चेंज इन द प्राइस। डिमांड के अंदर तो कम चेंज हो रहा है और प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं अपन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के बाद में अपन देख रहे हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, प्राइस के अंदर तो ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड के अंदर कम चेंज हो रहा है, वो होती है अपनी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड भी अपन देख सकते हैं कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है उसको अपन शो कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है पी मीन्स ये प्राइस को और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को। सो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड के अंदर क्या हो रहा है, डिमांड के अंदर कम चेंज हो रहा है, तो वो जाएगा अपना परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के बाद में अपन देख रहे हैं कि जो इसका ग्राफ शो हो रहा है वो एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस पैनल को ये शो कर रहा है। को ये शो कर रहा है। फिर अपन इसके ग्राफ पे कर जाते हैं, तो ग्राफ की जो अपन देखते हैं कि जो ग्राफ इसका शो कर रहा है वो कर रहा है यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और एक ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है। अब अपन देख रहे हैं परफेक्टली इसके अंदर इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक का अगर देखें अपन डिमांड कर्व, जो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। इसको अपन एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसको अपन वाई एक्सिस बोल सकते हैं। सो जो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है और एक्स एक्सिस होता है। और जो इसकी इस कर्व के अंदर या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है, जीरो। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो इसलिए होती है क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड इसके अंदर रिमेनिंग सेम है, इसलिए इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसी होगी, जीरो। दिस ग्राफ शो द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स द मोर चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द लेस चेंज इन द प्राइस। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर अपन जो डिमांड कर्व देख रहे हैं, जो डिमांड कर्व की इसके अंदर जो सेव है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राफ को। ये वो जो है परफेक्टली इनइलास्टिक तो है वो तो शो करता है वर्टिकल एक्सिस को, और ये जो इलास्टिक डिमांड कर्व है ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सो डिमांड कर्व इसके अंदर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और जो इसके अंदर जो डिमांड कर्व जो होता है ये शो करता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दिस ग्राफ शो द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर अपन जो देख रहे हैं इसके अंदर जो ये ग्राफ है ये शो कर रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग को। इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है ना, इलास्टिसिटी, इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ये इलास्टिक है तो इसके अंदर डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस के अंदर कम चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो होता है ये यूनिटरी इलास्टिक होता है। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो होता है इसका अर्थ होता है लेसर प्रपोर्शनेटेड चेंज इन द प्राइस एंड कमोडिटी एंड द लार्जर चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वो होता है अपना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड को। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर जो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो लेस देन यूनिटरी होती है। अगर परफेक्टली इलास्टिक के अंदर अपन देख रहे हैं तो इसके अंदर इलास्टिसिटी डिमांड है वो कैसी थी, रिलेटिवली यूनिटरी थी, ज़्यादा यूनिटरी थी। इसके अंदर जो है डिमांड जो है लेस देन यूनिटी है, उसके अंदर ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसके अंदर कम चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस के अंदर चेंज ज़्यादा हो रहा है और डिमांड के अंदर कम चेंज हो रहा है, इसलिए जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है इसको अपन लेस देन यूनिटी इलास्टिक कर्व या डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। Thank you. I hope all are you satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you.